students, welcome to all of you. Today we will read about first chapter of the short story book class in India, The Gold Watch, written by Ponchikara Reffi, a great Malayalam writer who was born in Kerala. Ponchikara Reffi has written about poor families. In this title, The Gold Watch, here he has described about a poor factory labor. How a poor factory labor manages his livelihood. This is shown in this chapter. Nowadays, we are seeing a lot of people have lost their job and loitering here and there in seek of any type of job to manage their livelihood. Earning money is very necessary for each person who survive a family, for his children and for his wife and family. So, Sanko, the character of this lesson, Sanko, who work in a factory and trying to manage his livelihood and try to economize his economical conditions and survive his family at any rate. He has a lot of loan. For that, he has to think a plan. He thought about a plan to steal a gold watch. Gold watch belonged to his factory manager, who was a British fair person. He had a gold watch. So Sanko thought if he stole that gold watch, he would be able to manage his economical condition. All points surrounding Sanko and his economical conditions. There are 3 or more characters like some factory laborers or some people from whom Sanko has borrowed money. Sanko has borrowed money. Sanko had a loan of 23 rupees, and to pay his debt of that money, he thought to steal the gold watch of his factory manager. What happens, how he stole, all things we will read in this chapter. So we start our chapter, The Gold Watch, written by Ponchikara Reffi. As on many previous nights, Sanko could not get any sleep that night. पिछली कई रातों की तरह संको उस रात भी सो न सका. Because Sanko was fully disturbed, so he cannot get any sleep that night. He turned and tossed in his bed. Means he was trying to sleep, but he was not able to sleep. But it was no use. लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं था. The more he thought, the worse he felt. जितना ज़्यादा वो सोचता था सोने के लिए या अपनी समस्याओं को हटाने के लिए, उतना ज़्यादा उसे बुरा फील होता था. He closed his eyes, उसने अपनी आंखों को बंद किया, and lay on his torn mat. Torn mat means फटी हुई चटाई पर आकर वो लेट गया. इन द डार्कनेस, अंधकार में, घर के कोने में
था वहाँ पर आकर वो लेट गया। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, फिर भी वह अपने माइंड की इमेजिनेशंस को उतना क्लियर देख सकता था जितना कि वह अपने दिन के समय में देखता है। एंड द क्या क्या देख रहा था? द डिजर्टेड ऑफिस रूम, बिखरा हुआ ऑफिस का कमरा। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट, जब सारे लोग रेस्ट करने के लिए जा चुके होते हैं। आर फॉर लंच, या भोजन के लिए। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्सली क्लोज्ड, कांच की जो खिड़की थी वह केवल आंशिक रूप से बंद थी। ऑन वन एंड, एक कोने पर, ऑफ द टेबल, टेबल के इनसाइड वर अ फ्यू फेड बेडरूम्स, टेबल पर ही कुछ मोटे वस्तुएं रखी हुई थी, मोटी कुछ लिफाफे थे, कुछ फाइलें थी, कुछ चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी। एट द अदर एंड, दूसरी तरफ, ए पेन एंड इंक बॉटल, एक स्याही की बोतल, एंड सो फोर्थ, और इसी तरह की कुछ और चीज़ें रखी हुई थी। एंड इन बिटवीन, और उन्हीं चीज़ों के बीच में, वाज अ गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी रखी हुई थी। विद इट्स गोल्ड चैन, जिसमें कि सोने की चैन लगी हुई थी। प्लेस्ड ऑन अ बुक, एक बुक के ऊपर रखी हुई थी। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट, आप जाते उस खिड़की को थोड़ा सा खोलते और खिड़की को खोलने के बाद 1 फुट अपना हाथ फैलाने से ही आप उस घड़ी को टच कर सकते थे, उठा सकते थे। एंड यू कैन पिक इट अप, और आप उसे उठा सकते थे। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, सारे लोग लंच के लिए गए होते हैं। नोबडी विल नो, और कोई नहीं जान पाएगा। शंको रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंको ने अपने प्रयासों को याद किया। ऐसा नहीं उसने प्रयास नहीं किए थे। ही हैज ट्राइड मोर बट ऑल टाइम ही गॉट ओनली फेल्योर। संकोच थॉट Sanko remembered his efforts, his covered eyes and his vacillation during the past few days. वैसिलेशन मीन्स छटपटाहट, किसी भी वस्तु को पाने के लिए व्याकुल होना। Curious to get anything. शंको remembered his efforts, his covered eyes, शंको को अपने प्रयास, अपनी कायरता और अपनी छटपटाहट पिछले कुछ दिनों की याद आने लगी। He had never seen anyone there at that time. उसने कभी भी किसी को उस समय पर वहाँ नहीं देखा था। And yet, और फिर भी, he had been afraid, वह भयभीत था। He had trembled and felt breathless. वह लड़खड़ा रहा था और अपने आप को श्वास रहित महसूस कर रहा था। That was why he had refrained from taking the watch every time. यही वह कारण था कि उसने हर बार घड़ी को चुराने का या उठाने का निर्णय बदल दिया था। It would not do to put it off any longer. लेकिन अब बहुत समस्याएं गंभीर हो चुकी थी। अब इस विचार को बहुत आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। If he thought any further, यदि इसके अलावा कोई और तरीका वो सोचता, he would not be able to do anything. तो वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। He might even blurt out his intention accidentally. यहाँ पर उसने किसी भी कई तरह के विचार अपने मन में लाए अपने समस्या को सुलझाने के लिए, लेकिन कुछ भी हासिल ना हुआ। So he must take it tomorrow. इसलिए उसने निर्णय लिया कि उसे अवश्य ही वह चुराना होगा कल। Suppose he did not. राइटर कह रहा है कि मान लीजिए उसने ऐसा न किया। Sanko's thought began to linger over the thorny problems of his life. अब शंको के विचार उसके जीवन की कटीली समस्याओं पर आकर टिक गए। Tomorrow would be the third day of the month. कल महीने का तीसरा दिन होगा। In another 3 days, अगले 3 दिनों में उसे अपना सैलरी मिल जाएगी। 13 rupees for 13 days. 13 रुपये 13 दिन के। He had to pay 4.5
फॉर परचेजेस एट द स्टोर, भंडार पर जो खरीदारी उसने की थी वहाँ पर उसे 4 रुपये 50 पैसे चुकाने थे। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, वहाँ पर 8 रुपये 50 पैसे का उसका बकाया था। ही हैड रीपेड ओनली 5 आउट ऑफ 10 रुपीज़ ही हैड बारोड फ्रॉम द फंड, और जो उसने फंड से पैसे लिए थे 10 रुपये, उसमें से उसने केवल 5 रुपये अदा किए थे पिछले महीने जो उसने लिया था कर्ज, टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपनी माता जी की पुण्यतिथि पर जाने के लिए। सो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट, इसलिए वह बचे हुए 5 रुपये ब्याज के साथ अवश्य वापस करेगा। एट 6 पैसे और रुपये अभी, जो कि 6 पैसा एक सप्ताह का 1 रुपये का होता था। एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर, ही ओव्ड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स, उसने 3 रुपये उधार लिए थे 2 सप्ताह से, मतलब वहाँ पर 3 रुपये का उसका कर्जा था जो उसने चाय वगैरह पी थी। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स, पिछले और बढ़ोतरी के अलावा, अमाउंटिंग टू अ रुपी एंड ए हाफ, उसका 1.5 रुपया 50 पैसा और बाकी था। He owed 6 rupees to Ali for supplying extra rice, cereals and other oats and meats, और एक अली नाम के विक्रेता के उस पास उसके 6 रुपये उधार थे जो 6 रुपये उसको भी देना चाहता था, जिससे कि वह एक्स्ट्रा राइस, बीड़ी और अन्य अपने घरेलू सामान लेकर आया था। 1 month's हाउस रेंट वाज 3 रुपीज़, 1 महीने का घर का किराया उसका 3 रुपये था। In addition to these sums, he had taken small loans of 12 पैसा। इन जो छोटे छोटे अमाउंट थे कर्ज के, इनको छोड़कर उसने और भी पैसे ले रखे थे, 12 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे कुछ अन्य लोगों से। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर, और उसकी पत्नी ने 2 दिन पहले उसे याद दिलाया था अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड द फिश वूमेन, कि 1 रुपया मछली बेचने वाली औरत को देना है। शंकु मेंटली एडेड द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, और शंकु ने अंदाज़ा लगाया, मेंटली एडेड, बिना किसी वस्तु के उसने जोड़ा, तो उसको जो पैसे की आवश्यकता थी उसने ऐड किया। व्हाट ही वाज गोइंग टू गेट वाज 8.5 रुपीज़, जो वह पाने जा रहा था वो क्या था 8 रुपये 50 पैसे। व्हाट ही ओड, और जो उसका कर्ज था वाज 22 रुपीज़ 13 पैसे, 22 रुपये 13 पैसे उसका कर्ज था। ही हैड अदर नीड्स टू, अन्य ज़रूरतें भी उसकी थी। ही हैड बारोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, 3 रुपये उसने अपनी पत्नी से ले रखे थे। दिस वाज आउट ऑफ द सम शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई अ वेस्ट चैन फॉर द यंगर चाइल्ड, जो कि उसकी पत्नी ने अब और तब, मतलब इधर उधर करके थोड़ा बहुत मैनेज करके इधर उधर से बचाए थे अपने छोटे बच्चे की वेस्ट चैन, गर्दन खरीदने के लिए। ही हैड एश्योर्ड हर, उसने उसे विश्वास दिलाया था कि ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, कि वह उसे अगले महीने की सैलरी से उसको वापस कर देगा। इस तरह आपने देखा कि शंकु के पास कितनी ज़्यादा समस्याएं थी। उसके पास जो कर्ज था 22 रुपये 13 पैसे का था, और उन दिनों की बात है जब पैसे की वैल्यू ज़्यादा होती थी। इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका कितना ज़्यादा कर्ज था और उसकी समस्याएं कितनी ज़्यादा थीं। इसीलिए वो चोरी करने का उसने प्रयास किया कि उसे किसी भी तरह गोल्ड वॉच चुरानी है ताकि वह अपना कर्जा चुका सके। ओके स्टूडेंट्स, इस पार्ट में इतना आपने पढ़ा है, आगे का नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे।